Filariasis. Filariasis is tropical disease caused by various thread-like parasitic roundworms that is called nematodes and their larvae. The larvae transmit the disease to humans through a mosquito bite. फाइलेरिया एक परजीवीजन्य संक्रामक बीमारी है जो धागे जैसे कृमियों से होती है। वैश्विक स्तर पर इसे एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी दैट इज़ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ माना जाता है। फाइलेरिया दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जिसमें भारत भी शामिल है। विश्व में लगभग 1.3 अरब लोगों को इस बीमारी के संक्रमण का खतरा है और लगभग 12 करोड़ लोग इससे वर्तमान में संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से लगभग 4 करोड़ लोग इस बीमारी की वजह से किसी विकृति का शिकार हो गए हैं या अक्षम हो चुके हैं। हाथी पांव एलिफेंटाइटिस फाइलेरिया का सबसे सामान्य लक्षण है, जिसमें सोफ ओडेमा के साथ चमड़ी तथा उसके नीचे के उत्तक मोटे हो जाते हैं। फाइलेरिया के कौन से कारक जीव हैं? फाइलेरिया फाइलेरियोडिडिया FILARIODIDEA कुल के नेमाटोडो, जिसको गोल कृमि भी कहते हैं, के संक्रमण से होता है। 3 प्रकार के कृमि इस बीमारी को जन्म देते हैं। ये है वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ब्रूजिया मलाई और ब्रूजिया टिमोरी। वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी इस बीमारी का सबसे सामान्य कारक है जो पूरे विश्व में पाया जाता है। ब्रूजिया मलाई दक्षिण पश्चिम भारत, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस और वियतनाम में पाया जाता है, जबकि ब्रूजिया टिमोराई सिर्फ इंडोनेशिया तक ही सीमित। कैसे फैलता है फाइलेरिया? स्प्रेड ऑफ फाइलेरिया। फाइलेरिया मच्छरों से फैलता है जो परजीवी कृमियों के लिए रोगवाहक का काम करते हैं। इस परजीवी के लिए मनुष्य मुख्य पोषक है, जबकि मच्छर इसके वाहक और मध्यस्थ पोषक हैं। कृमि प्रभावित क्षेत्रों से लोगों का रोजगार की तलाश में बाहर जाना, शहरीकरण, औद्योगिकरण, अज्ञानता, आवासीय सुविधाओं की कमी और स्वच्छता की अपर्याप्त स्थिति से यह संक्रमण फैलता है। संक्रमण के बाद कृमि के लार्वा संक्रमित व्यक्ति की रक्त धारा में बहते रहते हैं, जबकि वयस्क कृमि मानव लसिका तंत्र में जगह बना लेते हैं। एक वयस्क कृमि की आयु 7 वर्ष तक हो सकती है। क्लासिफिकेशन। फाइलेरियासिस इज क्लासिफाइड depending on the area of the body which the worms mainly affect. Its classification include first, lymphatic filariasis. In this, the lymphatic system is affected, can result to a more serious complication such as enlargement of body parts, can cause pain and permanent disability caused by Wucheria bancrofti, WUCHERIA BANCROFTI, Brugia malai, BRUGIA MALAYI, and Brugia timori, BRUGIA TIMORI. Second is subcutaneous filariasis. In this, the subcutaneous area of the skin gets affected, caused by Loella onchocerca volvulus, ONCHOCERCA VOLVULUS, and Manzonella streptocerca, MANSONELLA STREPTOCERCA. Third is serous cavity filariasis. In this, abdomen serous cavity gets affected, caused by Manzonella ozardi, MANSONELLA OZZARDI, and Manzonella perstans.
MANSONELLAPERSTANS. In this diagram, we can see the pathogenicity of the filariasis. First, the mosquito takes a blood meal and releases the larva into the skin. In the lymphs, the larva get into adults, and the adults produce sheethead microfilariae that migrate into lymph and blood channels. From there, when another mosquito takes a blood meal, adult microfilariae get entered into the mosquito. There, the microfilariae shed sheets, penetrate mosquito midgut, and migrate to thoracic muscles. There, it produces L1 larva, and that L1 larva changes into L3 larva. Then the L3 larva migrate to head and mosquito's proboscis. From there, the mosquito when bite another person, it releases the L3 larva. Here in this diagram, the pathogenicity is shown by a simple arrow diagram. Sign and symptoms of the filariasis. First is fever. Second is inguinal or axillary lymphadenopathy. Third is testicular or inguinal pain. Fourth is skin exfoliation. And fifth is limb or genital swelling. Repeated episodes of inflammation and lymphedema lead to lymphatic damage, chronic swelling, and elephantitis of the legs, arms, scrotum, vulva, and breasts. क्या है फाइलेरिया के लक्षण? इस तथ्य का अभी तक सटीक आकलन नहीं किया जा सका है कि संक्रमण के बाद फाइलेरिया के लक्षण प्रकट होने में कितना समय लगता है। हालांकि मच्छर के काटने के 16 से 18 महीनों के पश्चात बीमारी के लक्षण प्रकट होते हैं। फाइलेरिया के ज़्यादातर लक्षण और संकेत वयस्क कृमि के लसिका तंत्र में प्रवेश के कारण पैदा होते हैं। कृमि द्वारा ऊतकों को नुकसान पहुंचाने से लसिका द्रव का बहाव बाधित होता है, जिससे सूजन, घाव और संक्रमण पैदा होते हैं। पैर और पेड़ू सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले अंग हैं। फाइलेरिया का संक्रमण सामान्य शारीरिक कमजोरी, सिर दर्द, मिचली, हल्के बुखार और बार बार खुजली के रूप में प्रकट होता है। फाइलेरिया कभी कभार ही जानलेवा साबित होता है। हालांकि इसके बार बार संक्रमण, बुखार, लसिका तंत्र में गंभीर सूजन और फेफड़ों की बीमारी, जिसको ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया हो जाती है। ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया के लक्षणों में खांसी, सांस लेने में परेशानी और सांस लेने में घरघराहट की आवाज़ होती है। लगभग 5% मामलों में पैरों में सूजन आ जाती है, जिसे फील पाँव अथवा हाथी पाँव कहते हैं। फाइलेरिया से गंभीर विकृति, चलने फिरने में परेशानी और लंबी अवधि की विकलांगता हो सकती है। फाइलेरिया के कारण हाइड्रोसील भी हो सकता है। मरीज के वृषण कोश स्क्रोटम में सूजन भी आ सकती है, जिसे फाइलेरियल स्क्रोटम कहा जाता है। कुछ मरीजों में मूत्र का रंग दूधिया हो जाता है। महिलाओं में वक्ष या बाह्य जननांग भी प्रभावित होते हैं। कुछ मामलों में पेरिकार्डियल स्पेस, जो कि हृदय और उसके झिल्लीदार आवरण के बीच की जगह होती है, में भी द्रव जमा हो जाता है। डायग्नोसिस: सैंपल इंक्लूड्स पेरिफेरल ब्लड, काइलस यूरिन, एक्सुडेट ऑफ lymph varix, hydrocele fluid, lymph node biopsy, skin specimen. Microscopic examination: it deals with detection of microfilariae. Macroscopic examination: detection of adult worm, that is lymph node biopsy. Hematological examination, that is eosinophilic count, is done. Serological test, that is complement fixation test, is performed. Intradermal test, that is immediate hypersensitivity test.
Filarial antigen is injected on skin. After 30 minutes, a wheal over 2 centimeters appears. कैसे फाइलेरिया का पता लगाया जाता है? फाइलेरिया परजीवी के माइक्रोफाइलेरी रक्त में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जा सकते हैं। माइक्रोफ्लेरी मध्य रात्रि के समय लिए गए रक्त के नमूनों में देखे जा सकते हैं, क्योंकि दुनिया में अधिकांश हिस्सों में इन परजीवियों में निशाचरी आवधिकता दैट इज नॉक्टर्नल पेरियोडोसिटी देखी जाती है, जिससे रक्त में इनकी उपस्थिति मध्य रात्रि के आसपास की कुछ घंटों तक ही सीमित रहती है। यह भी देखा गया है कि रक्त में इस परजीवी की उपस्थिति मरीज के सोने की आदतों पर भी निर्भर करती है। फाइलेरिया की पहचान में सीरम संबंधी तकनीकी माइक्रोस्कोपिक पहचान का विकल्प है। सक्रिय फाइलेरिया संक्रमण के मरीजों के रक्त में फाइलेरिया रोधी IgG4 दैट इज इम्यूनोग्लोब्युलिन G4 का स्तर बढ़ा हुआ रहता है, जिसका सामान्य तरीकों से पता लगाया जा सकता है। ट्रीटमेंट इंक्लूड डाइइथाइल कार्बामेजिन अगेंस्ट फाइलेरियल worms, पैरामिथाइल फेनाइल स्टिबोनेट अगेंस्ट इन्फेक्टिव लार्वा, arsenical preparation against adult worm, correction of lymphatic defect through surgery, surveillance of disease in endemic areas. फाइलेरिया ग्रस्त इलाकों में डाइएथाइल कार्बामेजिन साइट्रेट युक्त नमक का रोजाना उपयोग नए संक्रमणों से बचा सकता है। डाइएथाइल कार्बामेजिन साइट्रेट के अलावा एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन दो अन्य फाइलेरिया रोधी औषधियाँ हैं जिनका उपयोग इस बीमारी के बचाव के लिए किया जा सकता है। फाइलेरिया संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए डाइएथाइल कार्बामेजिन साइट्रेट सबसे प्रचलित औषधि है। यह औषधि फाइलेरिया के कृमियों को अशक्त पैरालाइज कर देती है, जिसके बाद रक्त की सफ़ेद कोशिकाएं इन्हें नष्ट कर देती हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रीडिंग साइट्स ऑफ वेक्टर्स यूजिंग बेड नेट्स वाइल स्लीपिंग, अप्लाइंग रेपेलेंट क्रीम्स ऑन स्किन। हाथी पाँव रोग आमतौर पर नंगे पैर चलने वालों को होता है, इसलिए चप्पल या जूते पहनने से संक्रमण के जोखिम को कम किया जा सकता है। चूँकि यह बीमारी मच्छरों के काटने से फैलती है, इसलिए मच्छरों की जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण संक्रमण की संभावना को खत्म कर देगा। फाइलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में घरों के अंदर और बाहर कीटनाशकों के इस्तेमाल से मानव आबादी सुरक्षित रह सकती है। जलीय खरपतवार पिस्टिया लैंसियोलाटा मच्छरों के प्रजनन को बढ़ावा देता है, इसलिए बारिश के मौसम में इस वनस्पति की प्रजाति को भौतिक, रासायनिक या जैविक तरीके से नष्ट कर देना चाहिए। जैविक नियंत्रक जैसे कि मछलियाँ, कीट और कवड़ों का इस्तेमाल करके मच्छरों की जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। दुनिया भर में मच्छरों पर नियंत्रण के लिए 2 लार्वावक्षी मछलियों गैम्बूसिया एफिनिस एवं पोइसिलिया रेटिकुलेटा का इस्तेमाल किया जाता है। बैसिलस स्फेरिकस और बैसिलस थुरिंजिएन्सिस जैसे जीवाणुओं के जैव लार्वानाशक रसायनों का इस्तेमाल भी मच्छरों की जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। सिलोमोमाइसिस, लैज़ेनिडियम तथा मेटाराइजियम जैसे कवकों और रोमानुमर्मिस कुलिसिवोरैक्स और रोमानुमर्मिस आयंगराई का इस्तेमाल भी मच्छरों के प्रजनन को रोकने में किया जा सकता है। जल में रहने वाले कीट जैसे जल बिच्छू
वाटर बोट और वाटर बग आदि मच्छरों के प्राकृतिक शत्रु होते हैं, जिनका इस्तेमाल मच्छरों की जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। ऐसा पाया गया है कि जल में उगने वाला फर्न एंजोला पिनेटा धान के खेतों में मच्छरों पर नियंत्रण पाने में कारगर रहा है, क्योंकि यह जल की सतह पर एक मोटी परत बना देता है, जिससे मच्छर पानी में अंडे नहीं दे पाते हैं। यह नाइट्रोजन भी संचित करता है, जिससे यह जैव उर्वरक का भी काम करता है। इसलिए एजोला पिनेटा का इस्तेमाल भी मच्छरों की रोकथाम के लिए किया जाना चाहिए। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी तथा मच्छर रोधी क्रीम का रोजाना इस्तेमाल करना चाहिए।